सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने शुरू किया था एफडीआई इन इंडिया, राइट? एंड वी हैड कवर्ड क्वाइट अ लॉट प्रोविजंस, लाइक वी हैड कवर्ड FDI by way of mergers and amalgamation. We also covered the ESOP, right? Then we also covered the right issue and bonus issue. We understood the concept of indirect foreign investment, correct? We also understood something called as downstream investment, then direct foreign investment, wholly owned subsidiary in India, then the compliances which are there, right? और हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि कैसे regulations यहाँ पर change हो गए. How does this impact, right, the foreign, see, debt instruments and non-debt instruments, correct? So we had started with the non-debt instruments. So today we'll quickly cover the portion of non-debt instruments, and we will also cover the non-debt instruments here. Then we also saw this non-debt instrument rules, right? And why it is rules? Because here it is governed by the central government here, correct? So this was the broad schedule, right? So till now we have covered all these things. हमने इन सबको कवर किया. आज हम यहाँ पे इसको भी देखेंगे. LLP से हम यहाँ पर शुरू करेंगे and we are going to cover other things. Jurisdiction हमने देखा था किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, but the reporting requirements is with the Reserve Bank of India, and we saw that the form filings and all. So आप यहाँ पर चेक करो. देखो अभी आपने जैसे यहाँ पे डाउट पूछा था साक्षी, so you can just see here, right, that no PROI shall make any investment in India. And you see the entire chapter is what? The entire chapter is FDI, which means foreign direct investment. So if PROI should not make any investment in India, how will the FDI come? So that's how the drafting, that's the beauty of the drafting of FEMA, that it initially says that no one should do anything, and then it provides. So save as otherwise provided in the act, rules or regulations, no PROI shall make any investments in India. And then they have made rules and regulations where a PROI can make investments in India, right? And then we had also understood the capital account transactions. They are prohibited unless specifically permitted, and the current account transactions are permitted unless specifically it is prohibited. Then we saw the Reserve Bank of India can also grant special permission. The obligation will be, all the compliances will be, or the obligation will be on the Indian entity which is receiving the foreign investments, correct? Then we had seen that investments by a person resident outside India will be subject to these 4 limits. So ये 4 points आपको हर आंसर में लिखना ही है, right? Entry routes हमने देखा था, we have the automatic route and the approval route, which is also called as the government route. We also understood the concept of sectoral caps. Last class में किसी को sectoral caps में doubt था. I hope ये आपको भी clear हो गया होगा sectoral caps का क्या मतलब रहता है. Then we also saw the investment limits there, correct? Yeah, नियति अभी clear हुआ ये आपको? This one, right? और फिर यहाँ पर additional conditions जो आपको यहाँ पर comply करना पड़ेगा, which will be specified here. फिर हमने देखा था कि यहाँ पर जो भी आपके securities है, जो depository receipts, even this will be considered as a foreign direct investments. और जो भी investments आप इंडिया में करोगे, that will be through the normal banking channel, that is authorized, जो आपका बैंक रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक, उसके थ्रू यहाँ पर मनी आएगा, या फिर जो आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट यहाँ पर ऑपरेट करने को दिया जा रहा है, स्पेशली इन केस ऑफ OCIs एंड NRIs, उसके हिसाब से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करोगे. एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट्स in India will be subject to taxes, and subject to taxes means when the amount will be repatriated back to the home country. At that point of time, the AD category 1 bank will ensure that all the taxes which are there on the income has been paid in India. तो कोई कैपिटल गेन वगैरह अगर होता है तो उसको जब आप वापस लेकर जाओगे तो आपको उसके ऊपर टैक्सेस यहाँ पर पे करना होगा. दैट्स व्हाट द रेमिटेंसेस ऑफ द सेल प्रोसीड. फर्दर हमने यहाँ पर देखा था एफडीआई के 2 रूट्स होते हैं, गवर्नमेंट रूट, approval route and the automatic route. In case of approval route, you don't have to take permission, it is permitted, but you will have to report the investment. And in case of approval route, before making the investment, you will have to take the government approval and then make the investment there. फिर आपके देखिए ये आ गया आपके पास एग्रीगेट ऑफ FPI, राइट? हमने यहाँ पर चेक किया था FDI को, लेदर जो पूरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसको 2 कैटेगरीज में स्प्लिट किया गया. One is the FDI and another is the FPI, foreign portfolio investment, and the foreign direct investments, right? So there are certain prohibited sectors in which the foreign direct investments is not allowed, which I said is going to be one of the important question for your exam. Thereafter हमने यहाँ पर चेक किया था sectoral cap, then the foreign direct investments, right? FDI,
और एफडीआई के लिए हम लोगों ने चेक किया था अनलिस्टेड एंड लिस्टेड कंपनी। तो अनलिस्टेड कंपनी में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एफडीआई। एंड इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, less than 10% would be considered as FPI, and more than 10% or 10 or more would be considered as a FDI, right? और अगर ये रेगुलेशंस है उसके पहले ऑलरेडी अगर कोई 10% से ज्यादा होल्ड कर रहा है तो उसको अभी भी FPI की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज FDI until unless they reduce the stake and then again go or hit 10 or go beyond 10, करेक्ट। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था रीपैट्रिएबल एंड नॉट रीपैट्रिएबल बेसिस। तो रीपैट्रिएबल मैंने आपको समझाया था रिटर्नेबल बेसिस। सो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फॉरेनर ने यहाँ पर किया, जो भी नॉन रेसिडेंट ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, दैट मनी वुड बी अगेन टेकन बैक टू द होम कंट्री। तो डोनाल्ड ट्रंप में इंडिया के अंदर 1 बिलियन US डॉलर लेकर आया, इन्वेस्टमेंट किया, उस पर प्रॉफिट कमाया। तो वो जो प्रॉफिट कमाया इस अमाउंट को वापस से यूएस ले जा सकता है, तो हम बोलेंगे द इन्वेस्टमेंट इज ऑन रीपैट्रिएबल बेसिस। लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने इंडिया में आके कोई इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट कैसा था कि यहाँ पे एक बार जो पैसा आ गया, लेट्स से $1 बिलियन वंस इन्वेस्टेड इन इंडिया, द अमाउंट विल बी the principal amount will be in India only, that will not be taken back to the USA. So वो क्या हो गया आपके लिए non repatriable basis, that is the non returnable basis। फिर हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर देखा था कि क्या क्या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास है। देन हमने यहाँ पे नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स को चेक किया था, ठीक है, ये नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास इधर आ गए। Then we had seen that how does the FDI takes place in a company. So in case of a person resident outside India, this point is common throughout, that a citizen or an entity from Pakistan or Bangladesh, they can come only with the approval route, even though the investment is eligible for automatic route where you don't need any government approval. But still, if you are a citizen or an entity from Pakistan or Bangladesh, you will require prior government approval. So let's say Donald Trump इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेकर आता है और वो अप्रूवल अपना ऑटोमेटिक रूट में है, तो कोई अप्रूवल का जरूरत नहीं। लेकिन अगर इमरान खान कोई पैसा इंडिया में लगाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। देयर आफ्टर हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया था कि बर्डन ऑफ कंप्लायंस जो रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा। भाई हम तो घर के आदमी को पकड़ेंगे, दैट इज द इंडियन कंपनी विच इज रिसीविंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसको पकड़ेंगे और उसको बोलेंगे भाई तुमने फॉर्म वगैरह फाइल क्यों नहीं किया। सो ऑल दीज थिंग्स वुड बी देयर। तो फॉर्म FCGPR ये आपको बाय डिफॉल्ट याद हो गया होगा अभी तक, FLA एंड देन फॉर्म FC ESOP, करेक्ट, ये सारे फॉर्म्स हमने देखा था। एंड देन फॉर्म TRS व्हेन द ट्रांसफर टेक्स प्लेस between a PROI and PROI, that is repatriable and non repatriable basis, अगर यहाँ पर ऐसा आता है। और दूसरा अगर PROI और non repatriable basis and between PRI, तो यहाँ पर जाएगा ओनर्स ऑफ रिपोर्टिंग, हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया था, राइट। देन PROI can purchase the equity instruments which are listed in India। तो अगर ऑलरेडी उनके पास कंट्रोल है एज पर टेक ओवर रेगुलेशन और जो कंसिडरेशन उन्होंने पे किया तो फर्दर वहां पर शेयर्स को वो ले सकते हैं। wholly owned subsidiary के अंदर 100% FDI is allowed, means a foreign company can set up a wholly owned subsidiary in India but only where the 100% FDI is allowed and there should be no FDI linked परफॉर्मेंस। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर आपको लिमिट को सेटअप करके दिया हुआ है। और अदर तरीका है जो है द अदर वेज हाउ यू कैन इन्वेस्ट, लाइक इफ यू सेट अप अ wholly owned subsidiary, तो यहाँ पर आपको बताया कि यू कैन डू द स्वैप ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, यू कैन import the capital goods or machinery and instead of paying the consideration in the dollar or in terms of rupees, you can issue the shares। तो shares issued for kind, ये वो वाला आपका आ गया, ठीक है, ये वाला पेमेंट आपका काइंड में हो रहा है, राइट। एंड देन इफ यू सी प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। देन हमने यहाँ पर चेक किया था इन्वेस्टिंग कंपनी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी। देन हमने डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स को देखा, राइट। देन डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स में हमने यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स थे उन सबको कवर किया था। ओनर्स ऑफ कंप्लायंस हमने देखा था, इट इज द फर्स्ट लेवल इंडियन कंपनी व्हिच इज रिसीविंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड देयरआफ्टर द इन्वेस्टमेंट इज बीइंग डन टू सम अदर इंडियन कंपनी। ये अपना ओनर्स ऑफ कंप्लायंस उनके ऊपर था। इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का हमने यहाँ पर डेफिनेशन को समझा। देन वी हैड आल्सो सीन द कंप्लायंसेस विद रिस्पेक्ट टू द राइट इशू, बोनस इशू, इशू ऑफ ESOP, स्वेट इक्विटी शेयर टू द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया and the compliance requirements we had seen here. Further we had seen pursuant to mergers and amalgamation, तो mergers and amalgamation में मैंने आपको बताया था you have to draw a scheme and this scheme is again approved by the NCLT,
और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि अभी सेक्शन 233 ऑफ द कंपनीज एक्ट में रीजनल डायरेक्टर है, और वहां पर शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। ये कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज अ कॉमन कंडीशन विच विल बी देयर थ्रू आउट। यू नीड टू ऑल्सो कंप्लाई द LODR, एंड इफ यू आर गोइंग टू ब्रीच द लिमिट्स देन यू नीड टू ऑब्टेन नेसेसरी अप्रूवल। और जो भी यहाँ पर कंपनीज है, ठीक है, विच इज इन्वॉल्व इन द स्कीम, दे आर नॉट एंगेज्ड इन द प्रोहिबिटेड सेक्टर। तो ये हमने यहाँ पर इसको कवर किया था। फर्दर अब हमें जो यहाँ पर पढ़ना है, दैट इज FDI इन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो FDI इन LLP अगर आप यहाँ पर चेक करो तो हु कैन, देखो इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में बनाया, हु कैन do the foreign direct investment in a LLP. So any PROI can do the foreign direct investment in a LLP except for the citizen of Pakistan and Bangladesh. So you see again this is the common point. Then a foreign portfolio investor and a foreign venture capital investor. So they are not allowed to invest in the LLP. So any PROI can do except for these three. Then the LLP is engaged in which sector? So when we are talking about sector, the sector in which LLP is engaged, okay, sector in which LLP is engaged, correct? तो वहां पर आपको क्या बताया है, 100% FDI if it is permitted under the automatic sector, there the investments can be done and there should be no FDI linked performance conditions. Thereafter, investments by way of profit. Now investments by way of profit share means you are reinvesting your earnings. You are reinvesting in your earnings. So wherever you are reinvesting your earnings, that should be again allowed as per the FEMA regulations. Only then it will be allowed. Otherwise it should be by way of the remittances from abroad. Foreign से पैसा इंडिया में LLP के अंदर लगना चाहिए। अगर इंडिया का कमाया हुआ पैसा वापस से लगा रहे हो तो अगर उसके लिए जो आपके रेगुलेशंस है, कंडीशंस, उसको आपको फुलफिल करना होगा। देयर शुड बी कंप्लीट कंप्लायंसेस ऑफ द LLP एक्ट, राइट? एंड जो भी आप यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन को अक्वायर कर रहे हो या फिर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, दैट शुड बी एट अ प्राइस विच इज द फेयर प्राइस। फेयर वैल्यूएशन जो आपका यहाँ पर रहेगा, फेयर प्राइस, उसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन करोगे। और इट शुड बी more than the fair price, but it should not be less than the fair price. So इसके लिए आपको क्या करना होगा, you need to obtain the valuation certificate. यहाँ पर नियति मेरे को पूछ रही है, सर नॉन रिपैट्रिएबल का कोई रियल एग्जांपल दो। You mean to know ask that any investment which has been done in India and वो वापस यहाँ से नहीं गया? There are many. कोई ऐसा आपको मैं फेमस एग्जांपल तो क्या दूं, but there are many investments which are done in India, okay, and those investments stay in India only. ये NRIs जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफी सारा इन्वेस्टमेंट which is done by NRIs, ठीक है, वो नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पर रहता है। तो ऐसा जैसा कोई आपको लिंक एग्जांपल अभी तो मेरे को क्लिक नहीं कर रहे, बट यस आप ये देखो मोस्टली जो ज्यादातर NRIs यहाँ पर पैसा लगाते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स, दोस आर ऑल ऑन द नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस, ओके। बिकॉज न्यूज वगैरह में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ इट यू आर गोइंग टू फाइंड द FDI एंड ऑल। यस, सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारे लोग हैं। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, पंजाब साइड यू आर गोइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव शिफ्टेड टू कनाडा, करेक्ट, और इंडिया में फिर उन्होंने यहाँ पर बिजनेस कर लिया है साथ में, ठीक है, अपने कजन्स के साथ और किसी के साथ पैसा, तो वो नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस के ऊपर आपने पैसा लगा दिया है। सो दैट्स हाउ इट गोज। you'll find a lot of people who have set up their businesses like that. In fact अगर आप यहाँ पर देखो, you'll find it हीरानंदानी साइड के अंदर भी so many people they have फ्लैट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उन सबको परचेज करके रखा हुआ है, राइट, और वो अपना नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे है आपका, they had held those property and अभी आराम से उनका वैसे दे गेट द रेंटल्स एंड ऑल, तो इस तरह से करके आपको मिलेगा, राइट। सो इस तरह से करके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यू नीड टू ऑब्टेन अ वैल्यूएशन सर्टिफिकेट फॉर दिस रिगार्ड, कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो फेयर प्राइस पर ही किया। अब ध्यान रखना, वैल्यूएशन के लिए अगर आप कंपनीज एक्ट का बात करो, इफ यू टॉक अबाउट कंपनीज एक्ट, तो हमारे पास एक है सेक्शन 247 which talks about the registered valuer, but registered valuer is at present covered only by the Companies Act and another is your Insolvency and Bankruptcy Code, IBC.
As far as FEMA regulation is concerned, the valuation certificate needs to be obtained by a chartered accountant. I means from a chartered accountant or a merchant banker, या फिर RBI के जो पैनल के अंदर आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स मिलेंगे, उनसे आपको यहाँ पर पेमेंट लेना होगा. अब अगर आप यहाँ पे किसी कंपनी को LLP में कन्वर्ट करते हो या किसी LLP को कंपनी में कन्वर्ट करते हो, तो ये 3 कंडीशंस आपके फुलफिल होने चाहिए, राइट? दैट the business should be in the automatic route, 100% FDI is permitted, only then it is done, and there should be no FDI linked conditions. Of course, इसके अलावा आपको LLP Act and the provisions of the Companies Act needs to be complied. ये तो आपको comply करना होगा, but as far as FEMA is concerned, these are the 3 restrictions which are there. So in case you get a question, short question for the FDI and LLP, you can write all these points here. अब अगर आप यहाँ पर देखो आगे, देयर इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जो यहाँ पर क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इन इंडिया. कनाडा वाले चाचा जी को यहाँ पर LLP में शेयर ट्रांसफर कर रहा है अपना कंसिडरेशन, तो यहाँ पर जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो ट्रांसफर करेगा, अगेन दैट शुड नॉट लेस देन द फेयर प्राइस, करेक्ट. और मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा आपका, वो सब जैसे RBI ने आपको बताया उसको आपको कंप्लाई करना है, दैट इज through the normal banking channel, right? The investment should be through the normal banking channel or through the permitted foreign currency account, permitted foreign currency bank account. Only उसी के थ्रू आप यहाँ पर ये जो भी आपको ट्रांसफर करना है पेमेंट्स वो आप कर सकते हो, whether it is the money which is coming into India or the money which is being going outside India due to the sale proceeds. तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा. इसके अलावा अगर आप देखो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पर देखो आपको 2 रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है. एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है आपका फॉर्म LLP 1, तो ये आपका जाता है फॉर द रिसिप्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन. सो विद इन 30 days द LLP इज गोइंग टू फाइल दिस. एंड देयर इज अनदर फॉर्म LLP 2 दैट व्हेनेवर देयर इज अ डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट मींस जो इन्वेस्टर है वो पैसा बाहर निकाल रहा है, ठीक है, या फिर वो अपना कैपिटल को ट्रांसफर कर रहा है बिटवीन a resident and a non-resident or non-resident or the resident, यहाँ पर उनको ये फॉर्म फाइल करना होगा. अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये रिपोर्टिंग 60 days में होगा फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द फंड. और ओनर्स ऑफ रिपोर्टिंग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखना, द ओनर्स ऑफ रिपोर्टिंग इज विद द रेसिडेंट पार्टी. द ओनर्स ऑफ रिपोर्टिंग इज विद द रेसिडेंट पार्टी. इन दोनों में इसके ऊपर रहेगा और इन दोनों में इसके ऊपर रहेगा. तो आप देखो थंब रूल जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था, ओनर्स ऑफ रिपोर्टिंग हम घर वालों को पकड़ेंगे, तुम घर के हो, तुम्हारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू शुड डू द कंप्लायंसेस. इट्स योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म अस. सो इफ यू डू नॉट इन्फॉर्म, मतलब घर का ही इंसान अगर नालायक निकलेगा तो बाहर वाले को हम क्या बोले, ठीक है. तो रेसिडेंट के ऊपर यहाँ पर ओनर्स ऑफ प्रूफ डाल दिया गया है. सो दैट्स व्हाट इज देयर इन योर FDI इन LLP. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर चेक करो, यू आर गोइंग टू गेट FDI इन ADR एंड GDR, depository receipts. We had also studied that any investment in ADR or GDR would be considered as a foreign direct investment in India, right? Even though the underlying shares are the shares of the Indian company, और वो किसी Indian company ने ही वो shares domestic custodian के पास रखवाया है, या any shareholder or the promoter of the Indian company is doing that, but ADR, GDR investments would be considered as a FDI. So depository receipts, they will be treated as FDI, and therefore this is a very important point जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको लिख के रखा हुआ है, that through depository receipts, okay, the limits should not exceed, the overall limit should not exceed. Take it something like this. आपको मैं एग्जांपल देता हूं. जैसे आप अगर देखो मेरे कंपनी के अंदर सपोज करो 100 शेयर्स है, ठीक है. ये 100 शेयर्स मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ, लेट्स से 60 shares are held with the promoters, okay, and 40 shares are held by the public. अब सपोज करो मेरे कंपनी के अंदर 24% FDI is allowed. So what I do, ये 40 में से 24 I issue it to non-residents, okay, and 16 I issue to the other public in India, राइट, अदर पब्लिक इन इंडिया. अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आई से दैट मैं यहाँ से लेट्स से
10 शेयर्स, मैं अपने 10 शेयर्स क्या कर देता हूँ, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को दे देता हूँ, एंड डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को बोलता हूँ प्लीज इंटीमेट द ओवरसीज कस्टोडियन बैंक द रिसिप्ट ऑफ दीज 10 शेयर्स, एंड देन आई इंटीमेट द ओवरसीज कस्टोडियन बैंक टू इशू the ADR and GDR, right? The ADR and GDR. Now tell me, have I breached the limit or I have not breached the limit? आप मुझे बताइए, have I breached the limit or I am within the limit? I hope ये ट्रांजैक्शन आपको क्लियर होगा. सो टेक्निकली अगर आप चेक करो, यहाँ पर क्या होगा, जब ये ADR GDR इशू होगा तो ये ADR GDR किसको इशू होगा, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को, और अल्टीमेटली ये पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, दिस पर्सन इज गोइंग टू पे टू द ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक इज गोइंग टू ट्रांसफर द मनी टू डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, और यहाँ से देखो ये किसके पास आ गया, प्रमोटर के पास आ गया. तो आप टेक्निकली देखो ऑलरेडी 24% नॉन रेसिडेंट्स के पास था, तो जो उनका 24% का FDI का लिमिट था ये ऑलरेडी फुलफिल हो चुका था. ठीक है, नाउ व्हाट दे हैव डन, दे हैव इशूड द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, और वो बोलते हैं कि हमने कहा FDI, मतलब ये तो जब इसको तो आप FDI बोलते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज फॉरेन से पैसा इंडिया में आया, ये नालायक लोग फॉरेन से इंडिया में आए और हमसे शेयर खरीद कर गए. लेकिन आप चेक करो, ये जो ADR GDR इशू किया हमने, ये तो इंडिया में इशू किया ही नहीं, ये तो हमने बाहर इशू किया. सो इसको आप FDI क्यों बोलते हो, बिकॉज अल्टीमेटली अगेन द होल्डिंग इज विद द नॉन रेसिडेंट, और आई वुड से the person resident outside India. Hence, this will also be considered as a FDI only. And once it is considered as FDI, you will have to comply with the other requirements. So that's the reason it's given that it should not exceed the overall limit. I hope ये आपको clear होगा. FDI ये आपको clear होगा that it should not breach the overall limits. ये clear है आपको? ये आपको clear है? ओके, फिर आप देखिए, द इशू मस्ट बी मेड इन टर्म्स ऑफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम 2014. ये आपको ऑलरेडी पता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम, राइट? इसी के हिसाब से आपने कंपनी लॉ के अंदर इसको डेफिनेटली पढ़ा होगा, या फिर सेबी वाले चैप्टर में आपने इसको डेफिनेटली पढ़ा होगा. सिक्योरिटी जो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ है, वहां आपने डेफिनेटली इसको कवर किया होगा. फिर आप देखिए, द डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक में परचेज द एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स, दोज एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर देयर on behalf of the person resident outside India for the purpose of conversion into depository receipts. So just now how we saw that ADR GDR, I hope आप लोगों ने इसको कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ में ADR GDR का कन्वर्जन आपने देखा होगा. Here there is an Indian company. This Indian company का कोई प्रमोटर होगा या फिर यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग यहाँ पर इस इंडियन कंपनी का इन्वेस्टर होगा. ये क्या करते हैं, they give shares, right? So basically they are going to give the eligible securities. Okay, they are going to give the eligible securities to the domestic custodian bank, and this domestic custodian bank is going to intimate to the overseas custodian bank, and from here the investments would be made to the PROI. Basically here you are going to issue the depository receipts to the person resident outside India. तो यहाँ पर जो बात हो रहा है वो इसी के लिए हो रहा है. So basically the domestic custodian bank is holding these eligible securities on behalf of these investors who are person resident outside India. So basically ये condition को यहाँ पर fulfill करने को वो बोल रहा है that the domestic custodian bank may purchase the eligible securities on behalf of the person resident outside India, which will be converted into depository receipts. But again, these should be as per the depository receipt scheme 2014. Then it says that the price should not be less than the price which is applicable to the corresponding issue or transfer which is made to the domestic investors under the applicable law. So basically here also they are talking about what? They are talking about the fair price, right? And then whenever securities are issued, so आपके पास ये देखो shares जब आप issue करोगे यहाँ पर तो आपके पास form FCGPR का compliance आ जाएगा. So you'll have to do the form FCGPR compliance within the 30 days, and this is to be done by the Indian company. The Indian company is going to do this. आप बताओ क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को, FDI and ADR and GDR? So once the FDI and ADR and GDR is done,
नेक्स्ट वी हैव इज समथिंग कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट व्हीकल. नाउ इन्वेस्टमेंट व्हीकल का क्या होता है, आप सब ने रीट्स, इन्वेट, एआईएफ्स के बारे में पढ़ा होगा. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट, एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. सो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उसके लिए ये लोग क्या करेंगे, एसपीवी तैयार करते हैं. इन्वेस्टमेंट व्हीकल इज योर स्पेशल पर्पस व्हीकल. Are you all acquainted with the concept of SPV? Are you all acquainted with the concept of SPV? If not, then I'll explain it. Are you all acquainted with the concept of SPV? Special Purpose Vehicle? Okay. All right. So यहाँ पर क्या रहेगा, ये SPV के अंदर इन्वेस्टमेंट्स का बात हो रहा है. सो बेसिकली जब आप ये SPV में इन्वेस्टमेंट करोगे तो you will be issued what? You will be issued units of that particular SPV and then the investments will be done. ओके, नियति बोल रही है यस, पर आप फिर भी बता दो. सो आप सिंपली देखो यहाँ पर SPV के कॉन्सेप्ट को अगर आपको देखना है, इट गोज समथिंग लाइक दिस. आप ये देखो, ये एक आपके पास है लेट्स से रीट. नाउ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ठीक है. अब ये ट्रस्ट, ये रीट आ गया. अब रीट में यहाँ पर देखो आपके पास क्या रहेगा, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर रहेगा. देयर विल बी वन इन्वेस्टमेंट मैनेजर और यहाँ पर एक आपके पास ट्रस्टी रहेगा. ठीक है, द स्ट्रक्चर गोज लाइक दिस. अब ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, रीट्स जो है, वो किसी एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएंगे. वो क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. सो लेट्स से ये एक ही रीट है, एक ही कंपनी है, ठीक है. दिस इज वन कंपनी ओनली, जस्ट लाइक हाउ इट हैपेंस इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड. सो यू हैव HDFC सिक्योरिटीज और उसके अंदर फिर उनके अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स और आपको सब मिलेंगे. सो अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास रीट, तो इन्होंने सपोज करो एक यहाँ पर मुंबई में प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाया, ठीक है. तो ये एक क्रिएट कर देंगे SPV. नाउ ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी ऑफ मुंबई, दे कैन परचेज द यूनिट्स ऑफ मुंबई SPV. Same way, they can also issue the units of let's say Delhi SPV. तो अब जिन जिन को दिल्ली की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन द दिल्ली SPV. सो कॉमन रीट ये अलग अलग आता है, बिल्कुल जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर रहते हैं. म्यूचुअल फंड में भी आप डिफरेंट स्कीम्स, वी हैव एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, देन इफ यू सी यहाँ पर ब्लू चिप फंड्स, मिड कैप. तो अगर मेरे को सिर्फ मिड कैप कंपनीज में इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू बाय अ म्यूचुअल फंड विच इज इन्वेस्टेड इन द मिड कैप स्कीम और यहाँ पर मिड कैप स्कीम के हिसाब से मुझे यूनिट्स मिल जाएगा. Now I am not concerned about how the blue chips are performing. I am not concerned how the small cap is performing. I am only and only concerned with how the mid caps are performing. If the mid caps are performing well, the units which I am holding, the value is going to appreciate. If the mid cap is not doing well, the units are going to fall down. So that's what happens here also. अब suppose करो ये जो मुंबई SPV है, this is the investment vehicle. This is the investment vehicle और यहाँ पर जो यूनिट्स इशू किया जा रहा है उनको हम बोलेंगे यूनिट होल्डर्स. द यूनिट्स वुड बी इशूड टू द यूनिट्स होल्डर. और ये जो यूनिट होल्डर्स है इसमें से कोई रेसिडेंट भी हो सकता है और कोई नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है. अब अगर कोई नॉन रेसिडेंट है या कोई PROI है जो यहाँ पर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन द यूनिट्स ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट व्हीकल, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अगेन अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एंड जनरली यहाँ पर ये जो SPV बनता है, this SPV is in the form of a company or this is in the form of LLP. ठीक है, तो ये कंपनी या LLP के फॉर्म में बना देते हैं और इसको हेड करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर आ जाएगा. सो यू विल हैव अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर फॉर द मुंबई SPV, you will have a investment manager for the Delhi SPV and this is how the calculation takes place. आप बताओ, is this clear? क्या आपने भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था? आपने भी नियति कुछ ऐसा ही पढ़ा था? ओके, चलो, तो आपका इन्वेस्टमेंट व्हीकल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर रिवाइज हो गया. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो वो क्या बोल रहा है, दैट अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन इन्वेस्ट इन द यूनिट्स. ओके, बट अगेन सी वन कंडीशन रिमेन्स सेम एक्सेप्ट फ्रॉम द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट व्हीकल बाय डिफरेंट
ट्रस्ट, और ये आप देखो यहाँ पर आपके पास यूनिट्स जो इशू किए जाते हैं। देन अगर आप देखो अ पर्सन में सेल ट्रांसफर रिडीम द यूनिट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट व्हीकल, बट अगेन इट शुड बी एज पर द सेबी रेगुलेशंस और एज पर द आरबीआई डायरेक्शंस। हियर आपको इसको कंप्लाई करना होगा। अब आप यहाँ पर चेक करो, ये सब के ऊपर आपका सेबी रेगुलेशंस है। यू हैव सेबी एआईएफ regulations, you have InvIT regulations, you have REITs regulations, and I'm sure AIF तो आपने SEBI में पढ़ा होगा, but REITs और InvIT आप यहाँ पर CS प्रोफेशनल में पढ़ोगे in case you are going to study corporate funding in the professional। ठीक है, तो जब आप प्रोफेशनल में कॉर्पोरेट फंडिंग पढ़ोगे तो आप REITs और InvIT के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तो आपको वहां पर जो SEBI regulations है, you have to do the investments as per the SEBI regulations here, or you have to comply with the RBI directions here। Then ये आपका जैसे आ गया फंड है, फंड ने एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाया, दैट इन्वेस्टमेंट व्हीकल इज कॉल्ड एज एसपीवी। उसमें लोग क्या करते हैं, ये यूनिट्स परचेज करते हैं, तो उनको हम यहाँ पर शेयर होल्डर मैंने लिखा है, सो दे विल बी बेसिकली व्हाट, दे विल बी द यूनिट होल्डर्स। ओके, एंड देन द इन्वेस्टमेंट व्हीकल इज गोइंग टू इशू दीज यूनिट्स टू द यूनिट होल्डर्स हियर। करेक्ट, तो यहाँ पर जो भी आपका प्रोसेस होगा दिस शुड बी ऑल एज पर द सेबी रेगुलेशंस। देन ये जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ये अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन एन इंडियन एंटिटी, अब देखो सिंपल सा पॉइंट है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर चेक करो, ये एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने एक एसपीवी बना दिया, लेट्स से फॉर मुंबई, और इस एसपीवी के अंदर लेट्स से डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस एसपीवी में पैसा लगाया, और ये जो एसपीवी है, ये जो मुंबई एसपीवी है, लेट्स से दिस इज फंडिंग अ प्रोजेक्ट व्हिच इज मेड बाय ओबरॉयज। ओबरॉयज यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो उसमें पैसा लगा रहे हैं। सो आप टेक्निकली अगर चेक करो तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली पैसा किस में लगा दिया, ओबरॉयज में लगा दिया। तो आप ये देखो, तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, व्हेन दे आर गोइंग टू मेक investments in the Indian entity, they will be considered as deemed to be indirect investment for that Indian entity। ठीक है, लेकिन कब, आपको यह ध्यान रखना है, अगर इस इन्वेस्टमेंट व्हीकल का स्पॉन्सर, मैनेजर या इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज बेसिकली अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और इट इज नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ध्यान से एक बार फिर से आप चेक करना, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल एसपीवी जो आपने बनाया, अगर उस एसपीवी का स्पॉन्सर, मैनेजर या इन्वेस्टमेंट मैनेजर, जो भी वहां पर उसको फंड मैनेजर जो इसको मैनेज कर रहा है, अगर वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड टू बी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और it is not controlled by a person resident in India, even then it will be considered as a indirect investment for this Indian entity। I hope I have made myself very clear। The investment vehicle आपको चेक करना है कि जो investment vehicle ने Indian entity के अंदर investment किया है, will that be counted as an indirect investment for that Indian entity or not। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, first you will have to see that वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल को कौन ओ करता है, इट इज ओन्ड बाय एन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन और नॉट, और दूसरा आपको चेक करना है हु इज कंट्रोलिंग दैट इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो स्पॉन्सर, मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो भी है, इफ दे आर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा, राइट। फिर अगर आप यहाँ पर देखो मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा, अगेन एज पर द आरबीआई रेगुलेशंस, जो भी आपके अटेंडेंट कंडीशंस रहेंगे, रेमिटेंसेस जैसे मैंने आपको बताया नेट ऑफ टैक्सेस रहेगा, ठीक है, रीपैट्रिएबल बेसिस पे तो ही वो वापस जाएगा। नॉन रीपैट्रिएबल बेसिस पे आपने इन्वेस्ट किया और अब आप पैसे को वापस ले जाना चाहते हो, तो अगेन यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द आरबीआई, ओनली देन यू विल बी अलाउड टू डू दैट। और इसके अलावा फॉर्म INVVI, ये एक आपको फॉर्म है, ये फाइल करना पड़ेगा जब भी, और दिस विल बी फाइल्ड बाय द इन्वेस्टमेंट व्हीकल व्हेनेवर द यूनिट्स आर इशूड टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये आपका यहाँ पर कंप्लायंसेस रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट व्हीकल, FDI इन द इन्वेस्टमेंट व्हीकल।
आप मुझे बताओ क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं?